السلام علیکم، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات سے پہلے دیکھتے ہیں ہیڈ لائنز۔ مسلمانوں کی مساجد، عیدگاہیں اور قبرستان چھیننے وقف قانون لایا گیا۔ کشن گنج بہار میں بیرسٹر اسد الدین اویسی کا خطاب۔ آئی لو محمد پر کہا، ہمیں نبی کریم سے ہے محبت۔ پبلک سروس کمیشن گروپ 1 کے منتخب امیدواروں کا تقرر کیا جا سکتا ہے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ، کمیشن اور منتخب امیدواروں کو راحت۔ تلنگانہ میں 3745 کروڑ کے پروجیکٹس کو منظوری۔ صنعتوں کو فروغ دینے سے متعلق کابینی سب کمیٹی کا اجلاس۔ 1500 نوجوانوں کو ملیں گی ملازمتیں۔ منسٹر پونم پربھاکر اور جی وویک نے جوبلی ہلز کے بارش سے متاثرہ علاقوں کا کیا دورہ۔ یوسف گڑھ ڈویژن میں زیر آب علاقوں اور تباہ شدہ سڑکوں، نالوں کا کیا معائنہ۔ GST کی شرحوں میں کمی، بہار اسمبلی انتخابات کے لیے ناٹک۔ KTR کا بیان، کہا کئی برسوں سے عوام کو لوٹا گیا۔ مودی کے 15 لاکھ روپے والے بیان پر بھی کیا طنز۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے الزام عائد کیا کہ مسلمانوں کی مساجد، درگاہوں اور دیگر مقدس مقامات کو چھیننے کے مقصد سے وقف ترمیمی قانون لایا گیا ہے۔ مودی حکومت مسلمانوں سے ان کے مقدس مقامات کو چھیننا چاہتی ہے۔ بیرسٹر اویسی بہار کے کشن گنج میں ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے، جہاں انہوں نے سیمانچل نیائے یاترا کا آغاز کیا۔ یہ 3 روزہ یاترا مسلم اکثریتی علاقوں میں پارٹی کو مستحکم کرنے منظم کی جا رہی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے وقف بل کسی نیک نیتی سے پیش نہیں کیا ہے، بلکہ حکومت مساجد، عیدگاہوں اور قبرستانوں کو چھیننا چاہتی ہے۔ مودی نے اس حقیقت کا جائزہ نہیں لیا کہ وقف جائیدادیں اللہ کی امانت ہوتی ہیں۔ صدر مجلس نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو مودی اپنے ناپاک منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اور صبح قیامت تک مسلمان اپنی مساجد میں نمازیں ادا کرتے رہیں گے۔ انہیں یقین ہے کہ اللہ کی امانت جائیدادیں BJP یا RSS کے ہاتھ میں نہیں جائیں گی۔ BJP سمویدھان کو کمزور کرنا چاہتی ہے۔ کسی کے گھر پر اگر بلڈوزر چلتا ہے تو میرے گھر پر چلتا ہے۔ میرے نام نہاد ہمدردوں کے گھر پر بلڈوزر نہیں چلتا۔ اگر کسی بچے کو آئی لو محمد کا پوسٹر اٹھاتا ہے تو اس کا پوسٹر چھین لیا جاتا ہے۔ اگر ان کے نیتاؤں کا نام لکھ کر آئی لو لکھ دیا جائے تو کوئی ان پر کچھ نہیں کہتا۔ کسی کے مدرسے کو اگر برباد کیا جا رہا ہے تو میرے مدرسے کو برباد کیا جا رہا ہے۔ میرے ہمنوا یا مجھ سے زبانی محبت کرنے والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، وقف کا قانون جو BJP نے بنایا، دنیا نے دیکھا کہ اسد الدین اویسی نے آپ کی طرف سے، مجلس کی طرف سے کھڑے ہو کر اس قانون کی دھجیاں اڑائیں۔ اس قانون کو بنانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کی وقف کی جائیداد کو ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ اس قانون کو بنانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمارے وقف بورڈ میں غیر مسلم حضرات کو ممبر بنا کر ہماری جائیدادوں کو ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لے کر اس کو ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ ASI کے نام پر جو ہماری جائیداد وقف کی ہے اس کو ہم سے چھین لیا گیا۔ لیمیٹیشن کا قانون لگا کر جو وقف کی جائیداد پر جو چور حضرات قابض ہیں ان کو مالک بنایا جائے۔ اس قانون کو بھی ہم کو یاد رکھنا ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے ایک ہی اپیل کر رہے ہیں کہ مجلس آپ کی جماعت ہے، مجلس پارٹی کو آپ کامیاب کریے۔ یہ کشن گنج میں وارڈ 31، وارڈ 32 اور وارڈ 33 میں جب کبھی بھی بارش ہوتی، یہاں پر ان تینوں وارڈوں میں بارش آ جاتی ہے، گھر میں پانی آ جاتا ہے۔ یہاں پر 1-2 کلومیٹر کی روڈ کا کام بھی ہونا باقی ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ کام بھی رکے گا۔ اور جو لوگ ہم کو گالی دیتے ہیں، ارے کشن گنج شہر میں یہ جو ٹک ٹک آٹو چلتا ہے اس پر ٹریفک پولیس ظلم کر رہی ہے، اس کو تو رکا دو کم سے کم۔ ہم کو گالی دینے سے بہتر ہے کہ تم غریبوں کی تو بات کرو۔ مگر آج آپ جان لیجئے
کہ عوامی مسئلوں پر بات نہیں ہوگی, انصاف کی بات نہیں ہوگی, یہ صرف یہی آ کر کہیں گے انصاف بعد میں ہوگا, تم ظلم کو سہتے رہو, پہلے ہم کو نیتا بنا دو, پہلے ہم کو مکھیہ منتری بنا دو, تاکہ ہماری خاندان میں جتنے لوگ ہیں, جتنی نسلیں ہیں, وہ کوئی نہ کوئی منسٹر بن جائے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں, یہ الیکشن آپ کا ہے, یہ الیکشن اویسی کا نہیں ہے, یہ آپ کو انصاف کی لڑائی لڑنا ہے. ہم آپ کے درمیان میں تھے اور رہیں گے. AIMIM کے سربراہ اسد الدین اویسی نے واضح کیا ہے کہ وہ RJD اور انڈیا بلاک کے ساتھ اتحاد کے لیے تیار ہیں, مگر ان کی پارٹی بہار اسمبلی الیکشن کے لیے صرف 6 نشستوں کا مطالبہ کر رہی ہے. بیرسٹر اویسی نے تنبیہ کیا کہ اگر تیجسوی یادو انکار کرتے ہیں تو عوام خود سمجھ جائیں گے کہ اصل میں BJP کی مدد کون کر رہا ہے. اسد الدین اویسی نے اپنی سیمانچل نیائے یاترا کا آغاز کشن گنج سے کیا ہے. یاد رہے کہ 2020 کے انتخابات میں AIMIM نے 19 نشستوں پر مقابلہ کیا تھا, جن میں سے 5 سیٹیں سیمانچل خطے میں سے جیتی تھیں. وہیں اس کے ساتھ ساتھ کشن گنج آئی لو محمد نعرے پر بات کرتے ہوئے بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ یہ معاملہ کانپور سے شروع ہوا, جہاں شاید ایڈیشنل DGP نے کہا تھا کہ کوئی نیا پوسٹر نہیں لگایا جا سکتا. اس کے بعد ہم نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ہمیں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے. ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو جاتا جب تک کہ ہم دنیا کی ہر چیز میں رسول اللہ کو سب سے عظیم نہ مانیں. یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے. دیکھیے, اختر الایمان صاحب نے خط لکھا ہے, پھر اختر الایمان صاحب نے یہاں کے لیڈر اپوزیشن کو لیٹر لکھا ہے. میڈیا کے ذریعے ہم نے اس بات کو کہا ہے کہ MIM پارٹی الائنس کے لیے تیار ہے, اور پھر اختر الایمان صاحب نے اپنے آخری خط میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم کو آپ 6 سیٹ دے دیجیے. اب یہ ان کو فیصلہ کرنا ہے, یہ نہیں کریں گے تو بہار کی جنتا یہ دیکھ لے گی کہ کون BJP کو کامیاب کرانا چاہتا ہے یا کون BJP کو روکنا چاہتا ہے. دیکھیے, یہ شروع ہوا تھا کانپور میں, وہاں کے شاید ADG بھی ایڈیشنل DGP نے کہا کہ کوئی نیا پوسٹر نہیں لگا سکتے. تو اس کے بعد ہم نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں. ہر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے, اس لیے کہ اس کے ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم مسلمان ہیں اور اگر ہم اللہ کو جانتے ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے کہ اللہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے, تم اس کی عبادت کرو, کسی اور کی مت کرو. ہم کو انہوں نے بتایا ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دنیا کی ہر چیز زیادہ نہیں چاہو گے. یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے. اور آرٹیکل 25 میں فریڈم آف ریلیجن ہے, تو سمویدھان میں فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کو آپ کیسا چھین سکیں گے کسی سے؟ اور یہ کیا بات ہے کہ نیا پوسٹر کیسا لگائے جو UP میں کیا غلط ہے ایک دم. وہ ابھی جو نہیں پوچھے وہ پوچھے. تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کو گروپ 1 معاملے میں ہائی کورٹ نے بڑی راحت فراہم کی ہے. گروپ 1 امتحان کے منتخب امیدواروں کو بھی عدالتی فیصلے نے راحت پہنچائی ہے. عدالت نے امتحانی پرچہ جات کی دوبارہ جانچ کرنے سے متعلق واحد جج کے احکام پر روک لگا دی ہے. عدالت نے کمیشن سے کہا ہے کہ جو 563 امیدوار منتخب کیے گئے تھے ان کا تقرر کیا جا سکتا ہے. تاہم عدالت نے کہا کہ یہ تقرر عدالت کے قطعی فیصلے کے تابع رہے گا. عدالت نے اس معاملے میں احکام کی اجرائی کے بعد آئندہ سماعت 16 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دی. واضح ہے کہ حال میں واحد رکنی بینچ نے گروپ 1 کی قطعی مارک لسٹ اور جنرل رینکنگ کو منسوخ کرنے کا فیصلہ دیا تھا اور 8 ماہ کے اندر دوبارہ پرچوں کی جانچ کرنے اور ضرورت پڑنے پر دوبارہ امتحانات کے انعقاد کی ہدایت جاری کی تھی. تاہم اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی جس پر منتخب امیدواروں کو بڑی راحت ملی ہے. تلنگانہ میں صنعتوں کو فروغ دینے سے متعلق کابینی سب کمیٹی کا ایک اجلاس سیکریٹریٹ میں منعقد ہوا. ڈپٹی چیف منسٹر ملو بٹی وکرمارگا نے اجلاس کی صدارت کی. اجلاس میں ریاستی وزراء ڈی سریدھر بابو, پی سرینیواس ریڈی اور دوسروں نے شرکت کی. اس اجلاس میں JSW
तोशिबा और हिंदुस्तान कोका कोला की जानिब से जुमला 3,745 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तजावीज़ को मंजूरी दी गई है। कहा गया है कि इन प्रोजेक्ट्स के नतीजे में 1,500 नौजवानों को मुलाजिमत के मौके फराहम होंगे और ज़राई शोबे को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। कोका कोला कंपनी की जानिब से खास तौर पर आम और संतरे के किसानों की हौसला अफजाई की जाएगी और इनकी पैदावार की तलब में भी इजाफा होगा। ये कमेटी न सिर्फ सरमायाकारी को फरोग देने में अहम रोल अदा करती है, बल्कि तेलंगाना की तरक्की के विजन को आगे बढ़ाने पर भी खास तवज्जो दी जाती है। सनतों और मैशियत के इस्तेहकाम में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए भी कमेटी की जानिब से इक़दाम किए जाते हैं। जारिया साल तेलंगाना में बारिश मामूल से ज्यादा हो रही है। शहर हैदराबाद में भी इंतहाई शदीद और मौसलाधार बारिश की वजह से आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। हालिया अरसे में होने वाली बारिशों में देखा गया है कि पुराने शहर से ज्यादा नए शहर में और खास तौर पर पौश इलाकों में बारिश की वजह से मुश्किलात पेश आई हैं। नए शहर के कई मुकामात पर पानी जमा होने की शिकायत आम हो गई है। जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स जैसे पौश इलाकों में भी यही सूरत हाल देखने को मिली है। जुबली हिल्स के इलाके में एक नाले का पुश्ता टूटने या इसमें शुगाफ आने से अतराफ के इलाकों में पानी जमा होने की शिकायत सामने आई थी। इसका जायजा लेने के लिए आज रियासती उज़रा और आला ओहदेदारों ने इस इलाके का दौरा किया और यहाँ बारिश की वजह से पेश आने वाले मसाइल का जायजा लिया। बल्दिया के मुताल्लिक़ ओहदेदार भी इस दौरे में शामिल थे। उजरा ने जुबली हिल्स इलाके में ज़ेरे तकमील सफाई और दूसरे कामों को जल्द मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी और कहा कि अवाम को मसाइल से बचाने तेज़ रफ्तारी से काम मुकम्मल किए जाएं। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली उभरती हुई फुटबॉल खिलाड़ी जी सोमया ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने सोमया को मुबारकबाद दी, जो फुटबॉल में शानदार मुजाहरे करते हुए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। हाल ही में सोमया को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से बेहतरीन खिलाड़ी के अवार्ड से नवाजा गया था। चीफ मिनिस्टर ने इस अवार्ड पर भी सोमया को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियों के लिए इनसे नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सोमया की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इस मुलाकात के मौके पर रियासती वजीर वी श्रीहरि के अलावा तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के सदर शिवसेना रेड्डी, फुटबॉल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर मोहम्मद अली रफत, जनरल सेक्रेटरी और दूसरे भी मौजूद थे। बीआरएस के वर्किंग सदर के.टी. रामाराव ने मरकज की मोदी हुकूमत और तेलंगाना की रेवंत रेड्डी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। केटीआर तेलंगाना भवन में करीमनगर के पार्टी कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से हालिया जीएसटी की शरहों में कमी पर कहा कि मरकजी हुकूमत ने कई बरसों तक लूट मचाई थी और अब बिहार इंतखाबात के कमी का नाटक किया जा रहा है। केटीआर ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी जीएसटी में कमी को बचत त्योहार करार दे रहे हैं। अगर वाकई आवाम को त्योहार की खुशी देना है तो मोदी वादे के मुताबिक हर शहरी के अकाउंट में 15 लाख रुपये फराहम कर दें। उन्होंने कहा कि कई बरसों तक अद्वियात और दूध जैसी बुनियादी अशिया पर भी भारी जीएसटी आयद किया गया था। उन्होंने सवाल किया कि क्या मोदी हुकूमत अब तक लूटी गई रकम को अवाम को वापस कर देंगी। उन्होंने कहा कि 2022 तक हर शहरी को घर फराहम करने का वादा किया गया था। अगर ये घर फराहम किए जाएं तो ये अवाम के लिए त्योहार होगा। उन्होंने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर भी तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत भी अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में यकसर नाकाम हो गई है। नलगुंडा जिले के दामिर चेरल मंडल में यूरिया की किल्लत पर धरने में शरीक हुए कबायली नौजवान किसान धनवाद साई सिद्धू को वड्डापल्ली पुलिस ने घर से घसीटकर 3rd डिग्री का निशाना बनाया। साई सिद्धू और इसकी अहलिया के मुताबिक पुलिस ने न सिर्फ जात पात के नाम पर गालियां दी, बल्कि स्टेशन ले जाकर पैरों को बांधकर रबड़ बेल्ट और लाठियों से 25 मिनट तक बेरहमी से मारपीट की। हत्या के बीवी ने पांव पकड़ने पर भी रुकने के बजाय मजीद जिल्लत आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। पुलिस के मजालिम से किसान चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा और अब रोजगार के लिए ऑटो चलाना भी मुमकिन नहीं रहा। मुतासरा की अहलिया ने SC/ST कमीशन से शिकायत करते हुए मुलविस पुलिस एहलकारों पर कार्रवाई का मुतालबा किया, जबकि इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए केटीआर ने कहा कि मामले को इंसानी हुकूक कमीशन तक ले जाया जाएगा और कसूरवारों को हरगिज नहीं छोड़ा जाएगा। నల్లగొండలో నిన్ననే ఒక తమ్ముడు యూరియా కావాలని ఒక గిరిజన సోదరుడు లంబాడ సోదరుడు ఆందోళనలో పాల్గొంటే
ఆయనను గుంజుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టి 3rd డిగ్రీ టార్చర్ చేసి ఉల్టా కేసు బనాయించి ఇంటికి పోయి భార్యను బండబూతులు తిట్టి ఇవాళ ఆయన నడవరాని పరిస్థితిలో కుంటుకుంటూ తిరుగుతుంటే నేను ఆ వీడియోలలో నేను చూసిన. జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారిని రిక్వెస్ట్ చేసి, అన్న మీరు పోయిరండి, ధైర్యం చెప్పిరండి ఆ పిల్లగాడికి, అవసరమైతే వదిలిపెట్టొద్దు వీళ్ళను, అవసరమైతే మానవ హక్కుల కమిషన్ కోవాలి, అవసరమైతే మనం ఇక్కడ SC/ST కమిషన్ కూడా పోవాలని చెప్పి జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారిని ఇప్పుడే పంపించి వచ్చిన. BRS के वर्किंग सदस्य KT रामाराव ने ग्रीन लैंडशिप अवार्ड के लिए इनको मुंतखब किए जाने पर इज़हार तशक्कुर किया. न्यूयॉर्क ग्रीन स्कूल कॉन्फ्रेंस के 9वीं एडिशन के लिए KTR को इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए KTR ने कहा कि यह अवार्ड इनके लिए बाइज़ फ़ख्र है और वो इसके लिए शुक्रगुजार हैं. अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर माहौलियाती हफ्ते के सिलसिले में ये अवार्ड दिया जाता है. KTR को इस अवार्ड तकरीब के लिए न्यूयॉर्क मदऊ किया गया है. तहम KTR ने कहा कि पहले से तयशुदा मसरूफियात की वजह से वो इस तकरीब में शिरकत नहीं कर पाएंगे. उन्होंने अवार्ड देने वालों से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि यह अवार्ड तेलंगाना में की गई इज्तिमाई कोशिशों का नतीजा है और वो इस अवार्ड के लिए मुंतखब किए जाने पर मुंतज़मीन के मशकूर हैं. शहर के मारूफ बतकमा कुंटा को हाइड्रा की कोशिशों से दोबारा बहाल कर दिया गया है. जहां ये झील इंतहाई बदहाल हो गई थी, इसे अब इंतहाई खूबसूरत बना दिया गया है. कमिश्नर हाइड्रा मिस्टर AB रंगनाथ ने मंगल की रात इस झील का दौरा किया. उन्होंने इस मौके पर बतकमा कुंटा में कश्ती रानी भी की. उन्होंने 26 सितंबर को यहाँ होने वाले बतकमा त्योहार के इंतजामात का जायजा लिया. इन तकारीब का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इफ्तिताह अंजाम देने वाले हैं. उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो 26 सितंबर तक बतकमा कुंटा और इसके अतराफ के मुकामात को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इक़दामात करेंगे. कमिश्नर हाइड्रा ने बताया कि सख्त जद्दोजहद के जरिए बतकमा कुंटा को बहाल किया गया है और यहाँ आवाम तफरीही के लिए आ सकते हैं. इस दौरान साबिक़ रुकने पार्लियामेंट V हनुमंतराव ने भी बतकमा कुंटा का दौरा किया और हाइड्रा की जानिब से झील की बहाली पर इसकी सताइश की. मुकामी अवाम ने भी बतकमा कुंटा झील की बहाली पर मसरत का इजहार किया और कहा कि जिस झील की हालत इंतहाई खस्ता और अबतर हो गई थी, इसे हाइड्रा ने सख्त जद्दोजहद के बाद इंतहाई खूबसूरत झील में तब्दील कर दिया है. ఈ నెల 26వ తారీఖున అంటే ఈ వచ్చేటటువంటి శుక్రవారం రోజున ఇక్కడ ఈ బతుకమ్మ కుంట ఏదైతే పునరుజ్జీవం పూసుకున్నటువంటి బతుకమ్మ కుంటలో ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా ఇక్కడ బతుకమ్మ కుంట ఇనాగరేషన్ జరుగుతుంది. దాంతోపాటు పెద్ద ఎత్తున కూడా ఇక్కడ బతుకమ్మ ఉత్సవాలు కూడా జరుగుతాయి. సో దీనికి ఆల్రెడీ ప్రభుత్వం తరపు నుంచి అట్లనే ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి నాయకులు ఇంకా ఇతర ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బస్తీవాసులు అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున కూడా ఈ అరేంజ్మెంట్స్లో నిమగ్నులై ఉన్నారు. దీంట్లో ఈ బతుకమ్మ సెలబ్రేషన్స్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంబర్పేటలో ఉన్నటువంటి స్థానికులందరినీ కూడా మేము ఇక్కడ ఆ రోజు ఆహ్వానిస్తున్నాం. అండ్ ఈ బతుకమ్మ కుంట అనేది మీరు చూస్తే కనుక ఏప్రిల్లో 24వ తారీఖున ఇక్కడ పూజతోటి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు ఇది ఒక మొత్తం ఎట్లా ఉండేనంటే ఇదంతా మొత్తం చెత్తతోటి డమ్ చేయబడ్డటువంటి ఒక మొత్తం యార్డ్ ఇది. సో మొత్తం చెత్తతోటి ఉండి ఇదంతా మొత్తం కంపళ్ళు చెట్లు ఇదంతా ఉండి మొత్తం ఇక్కడ గాంజాయి తాగేది ప్లస్ ఇట్లా అంతా ఎక్కడ చూసినా మందు బాటిల్లు చెత్త అంతా ఉండి మీకు మొత్తం ఇక్కడ వాసన వస్తుండే అన్నట్టు, ఎందుకంటే డంపింగ్ గ్రౌండ్ ఉండే అన్నట్టు. అటువంటి దీన్ని 5 నెలల్లో ఇది ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మీద మేము HMDA ఫండ్స్ తోటి దాదాపు 7.5 కోట్లతోటి ఇక్కడ హైడ్రా ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం జరిగింది. 5 నెలల్లో మనం ఇప్పుడు బతుకమ్మ కుంటని పూర్తిగా ఇచ్చేయటం. సో దీనికి అసలు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ దీనికి కదలటానికి కూడా మన పెద్దలు మాజీ రాజ్యసభ సభ్యులు V హనుమంతరావు గారు వారు మాకు కంప్లైంట్ ఇవ్వటము, ఆ కంప్లైంట్ మీద మేము లోతుగా దాన్ని ఎంక్వైరీ చేయటము, దాని తర్వాత అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ తోటి కూడా దీన్ని మొత్తము కలిసి ఒక డీటెయిల్ ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత దీన్ని సంబంధించినటువంటి దాన్ని కూడా కోర్టులో అన్నింటిలో కూడా అంటే దిగువ కోర్టులో కూడా సిటీ సివిల్ కోర్టులో దీన్ని 4 రోజుల పాటు సుదీర్ఘంగా దీని మీద వాదోపవాదాలు విన్న తర్వాత కోర్టు మాకు అనుకూలంగా ఇవ్వటం. అలానే మన హైకోర్టులో కూడా కోర్టు పలు సందర్భాల్లో అవతల ప్రత్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ చెరువు కాదు ఇది మా భూమి ఇది అని చెప్పి ఎవరైతే క్లెయిమ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు పలు అంటే లీగల్గా మాకు అడ్డంకులు పెట్టాలన్నా కానీ కూడా హైకోర్టు ఎప్పుడు కూడా అది హైడ్రాని అండ్ అట్లానే దీన్ని పునరుజ్జీవం చేసే ప్రక్రియని కూడా వారు ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చారు. అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ముగింపు దశకు వచ్చింది. మీరు చూస్తున్నారు అత్యంత సుందరంగా ఇక్కడ జరిగేది మొత్తం తయారైంది. ఇప్పుడు ఈ చెరువు వలన ఈ చుట్టుపక్కల కాలనీస్ అన్నింటిలో కూడా ఇంతకుముందు ముంపు ఉండేది, ఆ
ఆ కాలనీస్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు వరద లేకుండా అన్ని నీరంతా ఇక్కడికి వచ్చి రావడంతో ఇక్కడ దీంతో పాటు మనం చూసిన ఇప్పుడు పక్షులు చాలా కూడా అన్ని మన అడవి బాతులు ఇవన్నీ హంసలు ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ మెల్లిగా మైగ్రేషన్ కూడా బర్డ్స్ మైగ్రేట్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఇదే కాకుండా మనం ఇక్కడ ఫ్లడ్డింగ్తో పాటు ఇక్కడ గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జింగ్ కూడా జరుగుతుంది. అండ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ చెప్పారు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాసులు కూడా కాలనీ వాసులు వాళ్ళ ల్యాండ్స్ అప్రిసియేషన్ అప్పుడే మొదలైందని చెప్పేసి. అంటే ఇది క్వాలిటీ అనేది ఇది ఉంటుందన్నమాట. క్వాలిటీ ఆఫ్ లివింగ్ అంటే మీరు దీన్ని మనం ఇట్లాంటి ప్రతి చోట కూడా మనం ఇలా చేసామంటే కనుక ఇది రియల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ని పెంచిన దానికి మనకు అవుతుంది. సో తప్పకుండా హైడ్రా ముందు కూడా ఈ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ని పెంపొందించే దిశగా వరద నుంచి అందరినీ కూడా కాపాడే దిశగా ఇటువంటి అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫ్లడ్ మిటిగేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయడానికి హైడ్రా ముందు కృషి చేస్తుంది. तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भारत की पहली अवामी ट्रांसपोर्ट बॉडी बन गई है जो अपनी तमाम कार्रवाइयों में मसनूई जहानत AI को शामिल करने जा रही है। इसके तहत मुलाजमीन की सेहत की निगरानी, बसों की तलब की पेशगोई, खुद कार शेड्यूलिंग और कारकर्दगी में बेहतरी के साथ लागत में कमी लाई जाएगी। तेलंगाना RTC ने हंस इक्वाइटी पार्टनर्स LLB के साथ शिराकत दारी की है जो टेक्निकी महारत और तरबियत फराहम करेगा। इब्तदाई तौर पर 6 डिपो में 40,000 मुलाजमीन की सेहत पर AI की बुनियाद पर मॉनिटरिंग की गई जिसके मुस्बित नताइज सामने आए और ये अब निज़ाम तमाम डिपो में नाफिज किया जाएगा। AI की मदद से दिन, तारीख, त्यौहार और हफ्तों की बुनियाद पर बसों की तलब की पेशगोई की जाएगी ताकि मुसाफिरों के लिए बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने इस मंसूबे को सराहा और कहा कि दुनिया का कोई शोबा अब AI से मुतासिर नहीं हुआ और अवामी नक्ल हमल में इसका इस्तेमाल एक काबिल तारीफ इक़दाम है। याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने UPHC मादनापेट में जारी फ्री हेल्थ कैंप का दौरा किया और डॉक्टरों व स्टाफ से मुलाकात करके कम्युनिटी की खिदमत के सिलसिले में जारी कोशिशों का जायजा लिया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे याकुतपुरा हलके में जारी कैंप्स में शहरियों को मुफ्त अद्वियात, स्पेशलिस्ट मशवरे, तशखीस और सरकारी व सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों में रिफर की सहूलत फराहम की जा रही है। इस इक़दाम का मकसद मुकामी अवाम को मियारी और बरवक्त तिब्बी सहूलियात फराहम करना है, ख़ास तौर पर इन अफराद के लिए जो माली या दीगर वजूहात की बिना पर इलाज में रुकावट महसूस करते हैं। इस मौके पर MLA ने कहा कि सेहत सबका बुनियादी हक़ है और MIM इस मिशन में हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। तकरीबन एरियाज़ के अंदर मेडिकल हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे और उसके अलावा लोकेलिटीज़ के अंदर जो कैंप 17 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और इंशाल्लाह 2 अक्टूबर तक कंटिन्यू जारी रहेगा। इसके अंदर एरिया के अंदर मुख्तलिफ डॉक्टर्स जा रहे हैं। डेली एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो रहेगा वो एरिया में बैठेगा। उसके अलावा मेगा हेल्थ कैंप होता है जहाँ पे अर्बन हेल्थ सेंटर के अंदर पूरे डॉक्टर्स मौजूद होते हैं जिसके अंदर कार्डियोलॉजिस्ट बोलिए आप और अपने गायनेकोलॉजिस्ट है, डर्माटोलॉजिस्ट है और दीगर डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं। एरिया की पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह आकर इसका इस्तेफ़ाज़ा हासिल कर रही है। जिसको जो परेशानी रहती है उसकी न सिर्फ मेडिसिन दिए जाते हैं, टेस्ट के लिए भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रुजू किया जाता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी को मेजर प्रॉब्लम है तो यहाँ से सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स को या एरिया हॉस्पिटल्स को रेफ़र किया जाता है और उनका मुकम्मल फ्री इलाज किया जाता है। उसी के सिलसिले के अंदर मैं आज अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो मादनापेट है वहाँ पर आया हूँ। न सिर्फ आके यहाँ पे पूरों से मुलाकात भी किया हूँ, चेक भी किया हूँ और तमाम डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ एरिया के जितने भी लोग हैं वो लोग को आकर यहाँ पर मुकम्मल इलाज करा रहे हैं। मैं इन सब का तमाम डॉक्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हमेशा वक्तन फ़क्तन ऐसे कैंप्स होंगे तो जो बिगनिंग स्टेज के ऊपर लोगों को अगर कोई तकलीफ़ होती है, इनिशियल स्टेज जिसको बोलते हैं, तो वैसे टाइम पे उन लोगों को बड़ा बेनिफिट होता है। जिसको अगर खुदा ना खास्ता पहले से ही मसला रहता है तो उनके लिए फ्री मेडिसिन के अलावा दूसरे दीगर टेस्टों का भी इंतज़ाम किया जा रहा है और उनको कहीं दूसरे दवाखाने की ज़रूरत पड़ती है तो रेफ़र किया जा रहा है। मैं तमाम डॉक्टर्स का और ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ के
मुकामी लोग, सदर है, मोतमदीन है, उसके अलावा चाहने वाले, इनका शुक्रिया अदा करते हुए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहना चाहता हूँ, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब न सिर्फ सेहत के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में और दीगर के अंदर भी दिलचस्पी लेकर हुकूमतों से ऐसे कैंप्स रखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। रोजगार के ख्वाहिशमंद अफराद ने हैदराबाद के दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन पर एहतजाज किया और तेलंगाना हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो 2025 से 26 के लिए रोजगार का जॉब कैलेंडर जल्द अज जल्द जारी करे। मुजाहिरीन, जिनमें लड़कियां और लड़के शामिल थे, सड़क पर बैठ गए और नारे लगाए, जबकि बैनर्स भी उठाए हुए थे। एहतजाज के बायस दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन के अतराफ शदीद ट्रैफिक जाम रहा और पुलिस ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने की कोशिश करती नजर आई। याद रहे कि पिछले साल तेलंगाना हुकूमत ने जॉब कैलेंडर 2 अगस्त को जारी किया था। मैट क्लब एंड किचन कुंडापुर हैदराबाद में एक पुरसुकून रात अचानक झगड़े में बदल गई, जब कुछ ग्राहकों ने बिल अदा करने से इनकार किया। बिल के मामले पर तनाव बढ़ता गया। बाउंसरों और ग्राहकों के दरमियान अल्फाज की तलखी हुई, फिर हाथापाई शुरू हुई। नतीजतन 4 बाउंसर्स शदीद जख्मी हो गए और इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल करना पड़ा। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक माधापुर पुलिस ने मामले पर दफा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। वाक़या तकरीबन 5 दिन पहले पेश आया था, ताहम मीडिया पर कल मंजर-ए-आम पर आया। पुलिस का कहना है कि झगड़ा बिल की अदायगी के तनाज़े से शुरू हुआ। बादजा ग्राहकों ने अपने दोस्तों या जान बच्चे पहचान लोगों को भी बुलवाया और एक ग्रुप मिलकर बाउंसरों पर हमलावर हुए। मामला न सिर्फ तशवीश का बायस है, बल्कि ये शबे नशीनी, पब्लिक मुकामात पर कानून व ज़ाब्ते की पासदारी, सारिफीन और स्टाफ के हुकूक, इन सब पर सवाल उठता है। जो लोग मुतासिर हुए हैं, इन्हें तिब्बी इमदाद फरहम की गई है और पुलिस की तहकीकात जारी है। हैदराबाद के कापरा सर्कल के सैनिकपुरी बस स्टॉप के करीब एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक में अचानक आग भड़क उठी। बाइक में अचानक धुआं और शोले निकलने लगे और देखते ही देखते पूरी बाइक मुकम्मल तौर पर जलकर राख बन गई। वाक़े के वक्त बस स्टॉप के करीब मौजूद लोग खौफजदा हो गए, लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ। माहिरीन का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स के बैटरी बैग्स में आग लगने के हादसात बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर पर गैर मयारी या पुरानी बैटरीज की वजह से शहरियों को मशवरा दिया जा रहा है कि सिर्फ माहिरीन का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स के बैटरी बैग्स में आग लगने के हादसात बढ़ते ही जा रहे हैं, खासतौर पर गैर मयारी या पुरानी बैटरीज की वजह से। शहरियों को मशवरा दिया जा रहा है कि सिर्फ मुस्तंद और मेयार के मुताबिक बैटरीज इस्तेमाल करें। बाइक को मुकम्मल चार्ज होने के बाद भी चेक करें और ज़्यादा देर तक चार्ज पर ना छोड़ें। आदिलाबाद शहर में बीआरएस को बड़ा धचका लगा है, जब 3 वार्ड सुदूर ने पार्टी को खैरबाद कहकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। कंदी श्रीनिवास रेड्डी के कैंप ऑफिस में वार्ड 18-19 के सुदूर, लिंका कार्तिक और एमडी मतीन और वार्ड नंबर 15 की सदर बबीता ने कांग्रेस ज्वाइन किया। इसके अलावा शेख इस्माइल, शेख रफीक,
शेख चांद पाशा, मोहम्मद शरीफ और शेख खादर भी कांग्रेस में शामिल हुए। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने इन सब का पार्टी का खंडवा पहनाकर खैर मकदम किया और कहा कि कांग्रेस एक नजरियाती पार्टी है जहां शामिल होने वालों को इज्जत व मुकाम मिलेगा। आदिलाबाद के साबिक म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी ने मुस्लिम अक़लियती इलाकों खुसूसन खानापुर, बकलगुड़ा और शांति नगर में बुनियादी मसाइल पर तवज्जो ना दिए जाने की शदीद शिकायत की थी, जिनमें पीने के पानी की किल्लत, ड्रेनेज की अबतर हालत, कब्रिस्तानों की अदम देखभाल और बीफ मार्केट की तामीर व सहूलियात की गफलत शामिल हैं। इस सिलसिले में आज लोकल बॉडीज के एडिशनल कलेक्टर व म्युनिसिपल स्पेशल ऑफिसर जनाब राजेश्वर ने म्युनिसिपल कमिश्नर CVN राजू के हमरा बीफ मार्केट का दौरा किया और बाउंड्री वॉल, मलगियात, सफाई और दिगर बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया। एडिशनल कलेक्टर ने यकीन दहानी करवाई कि रिपोर्ट जिले कलेक्टर को भेजी जाएगी और मंजूरी मिलते ही एक हफ्ते के अंदर काम शुरू कर दिया जाएगा। స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులతో మరి స్థానిక ప్రజలతో మరి ఇక్కడ ప్రముఖులతో కలిసి మార్కెట్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఇది గతంలో గౌరవ కలెక్టర్ గారి దృష్టికి ఇన్కంప్లీట్ వర్క్ విషయంలో తీసుకొచ్చారు. మరి ఆ సారాదేశం మనకి విజిట్ చేయడం జరిగింది. త్వరలో దీన్ని పూర్తి చేసి శాశ్వతమైనటువంటి పరిష్కారం అనేది మున్సిపాలిటీ పక్షాన దీన్ని ఏ రకంగా శాశ్వతంగా కంప్లీట్ చేసి పర్మనెంట్ బేస్డ్ అందించాలనేది ఆలోచన ఉంది. ఆ రకంగా పూర్తి చేయడానికి చర్యలు తీసుకుంటాం. తర్వాత ఇక్కడ కొంత ఇన్కంప్లీట్ వర్క్స్ చెప్పారు, ఆ రిమైనింగ్ ఎస్టిమేషన్స్ కూడా చేసి ప్రభుత్వానికి ప్రపోజల్ పంపి అవి శాంక్షన్ ఎప్పటిదాకా ఇది వర్క్ స్టార్ట్ అయితే సార్? ఇప్పుడు జిల్లా కలెక్టర్ గారితో డిస్కస్ చేసి ఒక 1 వీక్లో వర్క్ స్టార్ట్ చేసినట్టు ప్లాన్ చేస్తాం. जिले निर्मल में मुसलसल हो रही बारिश के सबब बासर के मुकाम पर गोदावरी नदी खतरनाक सतह से ऊपर बह रही है। पानी की तेजी और तुग़यानी के बायस अक़ीदतमंदों को नदी में मजहबी गुस्ल के लिए आने जाने में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। अमावारी मंदिर से गोदावरी घाट तक जाने वाली सड़क SRSP बैक वाटर के जेरे असर डूब गई है, जिसकी वजह से रास्ते में पानी जमा हो गया है। अक़ीदतमंदों ने हुक्काम से मुतालबा किया है कि मुफ्त बसों को गोदावरी घाट के रास्ते चलाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। नवरात्रि के तीसरे दिन के मौके पर आमतौर पर भारी तादाद में ज़ायरीन बासर पहुंचे हैं, मगर तुग़यानी के बायस लोग मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। कारोबारी तबका और ठेकेदार भी सख्त परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि गोदावरी पर होने वाले कारोबार और टेंडर मुतासिर हुए हैं। ज़ायरीन की आमद रुकने से मुकामी तिजारत ठप होकर रह गई है। कागजनगर टाउन के रेलवे स्टेशन के अतराफ में पिछले चंद दिनों से बार बार अजदा नुमा सांप की आमद से मुकामी अवाम सख्त खौफ व हिरास का शिकार हैं। अवाम का कहना है कि किसी भी वक्त कोई नाखुशगवार वाक़या रोनमा हो सकता है, जिसकी वजह से इलाके के मकीन दिन रात परेशानी में मुब्तला हैं। इस सिलसिले में CPM पार्टी सरपुर असम्बली हल्के के कन्वीनर मंजम आनंद कुमार ने महकमा जंगलात के अहदेदारों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अवाम को किसी किस्म के हादसे से महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि इस सांप को फौरी तौर पर तलाश करके पकड़ा जाए और जंगल में छोड़ा जाए। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। मुसलमानों की मसाजिद, ईदगाहें और कब्रिस्तान छीनने वक्फ कानून लाया गया। किशनगंज बिहार में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। आई लव मोहम्मद पर कहा, हमें नबी करीम से है मोहब्बत। पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 के मुंतखब उम्मीदवारों का तकर्रुर किया जा सकता है। हाई कोर्ट का फैसला, कमीशन और मुंतखब उम्मीदवारों को राहत। तेलंगाना में 3,745 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। सनतों को फरोग देने से मुताल्लिक़ काबीना सब कमेटी का इजलास। 1500 नौजवानों को मिलेंगी मुलाजिमतें। मिनिस्टर पुन्नम प्रभाकर और जी विवेक ने जुबली हिल्स के बारिश से मुतासरा इलाकों का किया दौरा। यूसुफगढ़ डिवीजन में जेर आब इलाकों और तबाहशुदा सड़कों नालों का किया मुआयना। GST की शरों में कमी, बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए नाटक। KTR का बयान, कहा कई बरसों से अवाम को लूटा गया। मोदी के 15 लाख रुपए वाले बयान पर भी किया तंज।
खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।